سوال جب بھی نبی کے دشمن کریں گے سنی کے عالموں سے، تو نجدیوں کا وہابیوں کا، تو نجدیوں کا وہابیوں کا بریلی والا جواب ہوگا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دے۔ سامعین اکرام، یہ جو دیوبندی فتنہ ہے نا، یہ لوگوں کو ایسا برگلاتا ہے، ایسا بہکاتا ہے اور ایسا کشمکش میں ڈال دیتا ہے، جو بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، ہتاحت ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، یہ ایک دیوبندی مفتی ہے، عالم ہے، اور کئی جو ہے مدارس میں یہ پڑھاتا بھی ہے دیوبند کے۔ تو ان کے پاس ہمارے کوئی بھائی گئے ہوں گے، ان سے بات چیت کی ہوگی کہ بھائی ہم یہ ریکارڈنگ وغیرہ سنتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی نے یہ کفر کیا اور ایسا لکھا۔ تو اس نے کیا کرا، اس نے کہا کہ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے بھی کفر کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی گناہ کیا ہے، لیکن ہم اس کو بولتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ان سے حوالہ مانگا، اس نے حوالہ دیا کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کا، الملفوظ کا حوالہ دیا۔ اس میں عبارت اس نے پیش کی کہ دیکھیے، حضور کی قبر مبارک میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ شباشی کرتے ہیں۔ اب یہ حوالہ اس نے پیش کیا تو ہمارے بھائی نے ہم سے رابطہ کیا، جب ہم سے رابطہ کیا تو ہم نے اس کا نمبر مانگا اور اس سے بات کی۔ اب دیکھیے، دوران گفتگو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ اس عبارت کو کیا سمجھتے ہیں الملفوظ کی؟ تو کہتا ہے گناہ ہے۔ میں نے بولا اس کا گناہ کا اجر کتنا ملے گا؟ تو یہ اللہ جانے۔ چلیے ٹھیک ہے، یہاں اس نے اپنی بغلیں جھاڑی۔ اس کے بعد ہم نے اس کے پاس اسی کی معتبر کتاب، اسی کے حفیظ اللہ، اسی کے مجدد، ٹھیک ہے، کتاب کا نام ہے سیرت حلبیہ، پیش کی اور اس کو بھیجی۔ اور ہم نے کہا کہ دیکھیے یہاں پہ جو سوال ہے کہ کیا انبیاء اور شہداء کو جنسی لذتیں مؤثر ہیں، تو اس نے جواب کیا دیا کہ ہاں، بلکہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ وہ قبر میں ہم بستری بھی کرتے ہیں۔ تو اب جب اس نے یہ حوالہ پڑھا تو اس نے کہا مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے۔ اب اس نے پورا پڑھنے کے بعد مجھے کال کیا۔ کال کرنے کے بعد یہ مجھ سے کہتا ہے کہ دیکھو نیچے لکھا ہے کہ شہداء کو انبیاء پہ قیاس نہیں کیا جائے گا۔ وہ تو بالکل حق بات ہے کہ جیسی حیات انبیاء کی ہے، جیسی حیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، تو شہداء کو اس سے کمپیئر نہیں کیا جائے گا۔ ان کی حیات کو شہداء کی حیات سے قیاس نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی جو حیات ہے وہ اللہ کی عطا سے، ٹھیک ہے، اور شہداء کی جو حیات ہے وہ حضور کے صدقے ہے، حضور کے صدقے ملی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات تو میں نے اس کو کلیئر کر دی، لیکن یہ پھر بھی حجت کرنے لگے۔ تو میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، آپ شہداء کا جواب دے دیجیے کہ کیا شہداء قبر میں ہم بستری کرتے ہیں؟ تو یہ مجھے ادھر سے ادھر بھگانے لگا، اس کا جواب نہیں دے رہا۔ ٹھیک، لیکن آخری میں جا کے اس نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ ہاں وہ ہم بستری کرتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اپنے اکابر کی کتاب کو انہوں نے مان لیا، جو ان کے اکابر نے لکھا آنکھ بند کر کے مان لیا، لیکن اعلیٰ حضرت کی یہ عبارت جو علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل ہے، اس کو اعلیٰ حضرت کے اوپر جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اب بتائیے کتنا گندا اور کتنا بدترین فرقہ ہے یہ۔ ایسے جاہل لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جو ایسے اندھ بھکت ہیں کہ اپنے اکابر کی کچھ بھی لکھی ہوئی عبارت کو مان لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ جب یہ ذلیل و خوار ہوا تو اس نے گالی بکنا شروع کیا، اور جب گالی بکنا شروع کیا اس کے بعد اس نے دوبارہ کال کی اور بوکھلاہٹ کا شکار الٹی سیدھی عبارت کو جیسے تیسے پیش کرنے لگا۔ ٹھیک، تو یہ حال ہے ان کا۔ اب ریکارڈنگ کو آپ پورا سنیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ عالم ہے یہ، دیوبند کا مفتی ہے یہ، ٹھیک ہے، اور بہت بڑا مفتی ہے دیوبند کا یہ، کئی مدارس میں یہ پڑھاتا ہے جا کے۔ تو اس کی ریکارڈنگ کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے بھائی احباب دوستوں کو ان سے بچائیں، ان کی حقیقت کو سامنے لائیں، دعا میں یاد رکھیں، اور ریکارڈنگ کو پورا سنیں، کہیں سے بھی اسکپ نہ کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ ہمیں آواز بہت دن آ رہی ہے۔ آ رہی ہے جی حضرت، وہ میں نے آپ کو ایک عبارت بھیجی ہے واٹس ایپ پہ، ملفوظات اعلیٰ حضرت کی، اس میں جو عبارت لکھی اس کے بارے میں تھوڑا پوچھنا تھا۔ فرمائیں کہ یہ کیا عبارت گستاخی ہے، کیا ہے؟ تھوڑا سا بتائیں گے، روشنی ڈالیں گے؟ پہلے وہ اس کو دیکھتے ہیں، اصل اس کا حوالہ جو صحیح ہے کہ نہیں اس کو میں دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ حوالہ صحیح ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زرقانی کا حوالہ دے رکھا ہے نا۔ جی تو وہی میں دیکھ رہا تھا، کبھی کبھی ہوتا آدمی جلد سے کام لے لیتا۔
جی اس میں علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ لکھا ہوا ہے، ہاں کتاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے. ہاں. تو یہ اچھا فرمائے، یہ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں جمشید علی بات کر رہا ہوں. جمشید. تو شاید آپ ان کے ماننے والوں میں سے ہیں، اعلیٰ حضرت صاحب کے. جی نہیں، میں مطلب دیکھیے ابھی تھوڑا سا مانتا بھی ہوں تھوڑا سا نہیں. تو یہ ہمیں مولانا مفتی قاسم صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نمبر دے رہا ہوں، ان سے آپ بات کر لیجئے، وہ بتا دیں گے کہ یہ لوگ کتنے بڑے گستاخ ہیں. ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے. یہ تو ان کی بہت ساری گستاخیاں ہیں. ہاں یہ تو بھائی دیکھو، قرآن و حدیث سے جو بات ثابت ہوگی وہی صحیح رہے گی. نہیں تو پھر حضرت اس کا عبارت کا کیا، ہم اس کو گستاخی پہ لیں گے اس کو عبارت کو؟ جیسے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ شباشی کرتے ہیں. یہ تو گستاخی ہی ہے بھائی. تو مطلب اس میں جو شباشی لکھا ہوا ہے اس کو کیا معنی میں لیا جائے گا؟ شباشی کے معنی مطلب ہوتا ہے رات گزارنا. رات گزارنا. جس طرح کا بھی ہو رات گزارنے کا کوئی معاملہ. اچھا دیکھو جو ہے انبیاء کرام کے بارے میں ہے حیات، اچھا ازواج مطہرات کے بارے میں نہیں. اچھا اچھا. تو کیسے صورت پیش آ سکتی ہے بتاؤ؟ ایک آدمی زندہ ایک مردہ، کیسے صورت پیش آتی ہے ایک ساتھ رہنے کی؟ مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں ہم ان کو زندہ نہیں مان سکتے؟ نہیں، حضور تو زندہ ہے بھائی، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں. ہاں تو ازواج مطہرات جو پیش کی جاتی ہیں ہاں تو پھر اس میں جو علامہ زرقانی کا قول نقل کیا گیا ہے تو پھر کیا کس کے اوپر حکم لگنا چاہیے؟ تو میں اسے دیکھ رہا ہوں نا، حوالے کو دیکھ رہا ہوں. ان کو انہوں نے بہت ساری مرتبہ ایسی تنظیم بہت ساری باتیں ایسی لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تردید کرتے ہیں. اچھا. ممکن ہے وہ بات لکھ کر کے انہوں نے اس کی تردید کی، وہ مل جائے پہلے حوالہ. تو جیسے مان لیجیے یہی اسی عبارت کو مان لیا جائے کہ جیسے اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ حضور کی بعض روزہ پیش کی جاتی ہیں اور وہ شباشی کرتے ہیں، تو یہ ہمیں گستاخی میں لینا پڑے گا. ہاں. تو اس پہ کیا حکم لگنا چاہیے حضرت اگر یہ گستاخی ہو تو؟ گناہ. ہاں، کفر کا تو معاملہ نہیں ہے. اچھا گناہ کا ہے. اگر وہ بنا گناہ کیے ہوئے دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا حکم آئے گا؟ کیا؟ اگر بنا گناہ کی توبہ کیے ہوئے چلے گئے دنیا سے تو پھر کیا حکم آئے گا؟ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں، یعنی اب گناہ کبیرہ کی سزا دیں اللہ تعالیٰ. یا تو ایک عبارت اور ہے حضرت، اسی میں کی ایک عبارت اور ملی ہے. اس میں جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ انبیاء اور شہداء کو قبر میں لذت حاصل ہوتی ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ ہاں انبیاء اور شہداء کو جو ہے لذت حاصل ہوتی ہے. یہ سوال ہے تو لکھا ہے کہ ہاں شہداء جو ہے ان کو کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے قبر میں اور وہ لوگ ہم بستری بھی کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اس سے بھی لذت حاصل ہوتی ہے، یہ عبارت بھی ہے. میں بھیج رہا ہوں، ایک منٹ رکیے. والے نمبر پر بھیجیے. ایک منٹ رکیے لائن پہ. ہاں 73100 والے پر بھیجیے. ایک منٹ. یہ دیکھیے میں نے بھیجا. کیا انبیاء شہداء کو جنسی لذت میسر ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اسی نمبر پر آپ نے بھیجا ہے. ہاں اسی نمبر پہ اس پر بھی بھیج دیجیے. 73100 والا پر. اصل میں اس کو بات کروں والا دیکھ رہا ہوں اس میں. کیا انبیاء اور شہداء کو جنسی لذت حاصل ہے؟ اب آگے لکھتے ہیں کہ ہاں وہ قبر میں ہم بستری بھی کرتے ہیں. بھیج نا عبارت بھیجو اس پر. بھیج دیا میں نے اسی نمبر. جی نمبر بتائیے. 73100 آپ نے اس پر بھیجا ہے نا؟ جی اس سے پہلے اسی پر بھیجیں پھر سے. اسی پہ بھیجا میں نے. اس پر بھی ایک اور نمبر پر آپ نے بھیجا تھا نا. اچھا ایک منٹ. ہاں وہ 001 ہے آخری میں. 73100 والا. 73100.
देखिए भेज दिया मैंने। अच्छा, कौन सी किताब का? सीरत हल्बिया है ये। अब इसमें देखिए सवाल हुआ कि क्या अंबिया और शौदा को लज्जत मयसर है। अब वो लिखते हैं कि हाँ उनको खाना खाने के साथ साथ वो अपनी कब्र में हम बिस्तरी भी करते। लेकिन इसकी कैफियत हमें थोड़ी पता है, मतलब ये दुनियावी खाने की तरह। हाँ तो ये जो लिखा है इसमें कि वो हम बिस्तरी भी करते हैं, उससे भी लज्जत हासिल होती है। इससे निकाल करके कहते हैं ना, करते हैं इस खाने पीने से ये भी स्वादिष्ट होता है, तो हम बिस्तरी भी करते हैं, क्योंकि हम तो लज्जत व्यस्त होते हैं जो खाने पीने से लज्जत होती है। ये दोनों सीरत हल्बिया है। नीचे लिखा है नहीं, ये तमाम पैगंबरों को नबूवत के साथ शहीद का मकाम दिया चला। तो अब जैसे हजरत ये भी हाँ, अब जैसे ये इबारत भी है तो इसमें कहीं का नकल नहीं है, किसी की नकल नहीं है, ये असल लिखी हुई है, मतलब उन्होंने खुद से लिखी है। ये तो तर्जुमा है। हाँ तो तर्जुमा में डंडी मार दी जाती है भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो इबारत है ये तो सवाल किया है और जवाब दिया है उन्होंने। तो मुफ्ती साहब ने इसमें जवाब दिया है और सवाल किसी साहिल ने किया है, तो ये तो कहीं से नकल नहीं है, ये तो बिल्कुल पुख्ता सबूत है कि एकदम जो है डंके की चोट पर इन्होंने ये लिखा है और कहीं से इसकी नकल नहीं है। तो अब वो अल्लामा जुर्कानी रहमतुल्लाह अलैह का अगर नकल है तो वो तो चलिए हटा दीजिए, उस पे तो अभी कशमकश है, लेकिन ये असल है, इस पर क्या करें हम लोग। इसके बारे में तहकीक करके मैं आपके पास फोन लगाता हूँ। अच्छा, जैसे आपने आला हजरत की उस किताब पर तो बता दिया कि भाई गुनाह है। हाँ, अब ये जो सीरत हल्बिया है ये मसलक देवबंद के अकाबिर की लिखी हुई है। हाँ ठीक है, मैं इसको पूरा आगे पीछे देख करके पढ़ कर उसके बाद बताता हूँ ना। अच्छा अच्छा, तो कब फोन करूँ मैं? जोहर के बाद, यानी 2-2:30 बजे तक। ठीक है, मैं 2-2:30 बजे कॉल करता हूँ। ठीक है हजरत, इसका जवाब देना है यहाँ पे जो है ना हजरत, बड़ा मुश्किल हो रहा है इसका जवाब देना। और इंशाल्लाह मैं जरूर कॉल करूँगा अगर ठीक 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 है। अस्सलाम ने जी। अरे फोन किया था मैंने, बात करने को कहा था। हाँ हाँ बोलिए। अच्छा हाँ, तो उस पर आपको क्या एतराज है? अरे हमारा एतराज नहीं है, हमें तो जवाब चाहिए, इसका जवाब हम क्या दें? मतलब उसमें लिखा हुआ है ना, सीरत हल्बिया में लिखा हुआ है। हाँ, जो लिखा है कि जो शोहदा है और अंबिया और शोहदा, यानी अंबिया को भी शहीद कहा गया है, हाँ, अंबिया और शोहदा को लज्जत मैसर है, तो वो जवाब देते हैं कि हाँ खाने पीने के साथ साथ वो कब्र में हम बिस्तरी भी करते हैं, उससे भी लज्जत हासिल होती है। अच्छा जी, पूरा सब आपने पढ़ा है? जी हाँ पूरा पढ़ा है। तो इस मतलब ये नहीं कहीं मिला कि इसकाल जायल हो सके? नहीं, इसमें तो कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है। दोबारा पढ़िए, उसमें बीच में लिखा हुआ है कि अंबिया किराम को शोहदा पर कयास करना सही नहीं। ये जवाब हो गया आपका। एक मिनट, अंबिया किराम को शोहदा पर कयास करना सही नहीं है, तो इस तरह की बात वहाँ लिखी हुई है। अब शोहदा का हिसाब जवाब दे दीजिए कि क्या शोहदा हम बिस्तरी करते हैं? अरे शोहदा के बारे में तो मशहूर हदीस है यार, वो तो आपके सामने से गुजरी हुई। तो मतलब शोहदा जो है कब्र में हम बिस्तरी करते हैं। पूरी बात पहले सुनिए, शोहदा की रूहों के बारे में क्या है? नहीं कि मुझे ये बताइए, शोहदा जो है अपनी कब्रों में जिंदा है। अरे भाई दोनों की हयात में फर्क है। अच्छा, हुजूर की हयात और शोहदा की रिवायत पहले सुनिए। हजरत सुनिए ना। देखिए मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना थोड़ा सा। कि शोहदा की हयात में और अंबिया की हयात में फर्क है, यानी शोहदा का जो मकाम है वो बड़ा है या अंबिया का मकाम बड़ा है? अंबिया का क्या बड़ा है। तो फर्क क्या है इसमें, दोनों में फर्क क्या है?
अरे वो भाई उस सफे में पूरा सिर्फ आपने वही देखा होगा, अरे आगे जनाब देखेंगे, जनाब सुनिए 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 आगे देखेंगे, सुनिए 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 पूरा आपने पढ़ा नहीं, मुझे पता हो गया, मैं वही बता मैंने रहा हूँ, आगे 2-3 सफा आगे पीछे मैंने पढ़ा, मैं वही उसमें बता रहा हूँ। साफ लिखा हुआ कि जुज़ई फजीलत है, जुज़ई फजीलत, चलो जुज़वी फजीलत में अंबिया और इकराम का जुज़ई मकाम फजीलत से नीचे किसी है, की तनकीस लाजिम नहीं आती है। अंबिया इकराम का मकाम नीचे है शोहदा से। ये ऐसे नहीं कहा अच्छा, जाएगा जुज़ई फजीलत, इस तो तरह से कहा जुज़ी जाएगा। फजीलत से शोहदा जो हाँ, है, जो शोहदा है वो कब्र में हम बिस्तरी कर सकते हैं। कब्र में मैंने कहा, तो आप इसमें अ- लिखा तो है ना इबारत अ- में। सुनिए शोहदा के बारे में क्या है, जो कब्र में शोहदा के जिंदा है? बारे, देखिए शोहदा के बारे में आपने बताया कि यहाँ से अंबिया बरी हो गए, चलिए ठीक है मान लिया अंबिया नहीं, बरी हो गए। आयत जो है कुरान की, वला तक़ूलू फी सबीलिल्लाहि अमवात हम्म, और ला तहसबन्ना अल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, हम्म। इसमें क्या लिखा है? मैंने इसका देखिए, क्या मतलब? इसमें कुरान की आयत का इस्तेदलाल इसमें नहीं होगा, अच्छा ठीक है, इसमें क्या लिखा है? इसमें कुरान का दखल ही नहीं है, इसमें अरे राय दे रहे अरे हैं, वो अपना भाई, अपनी राय दे रहे हैं। शोहदा की हयात यहीं से साबित है तो भाई। शोहदा की हयात साबित है, अंबिया की हयात साबित नहीं है। किसकी हयात साबित नहीं? अंबिया अंबिया की की, हाँ। रिवायत से साबित है, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि चलो वसल्लम ने ठीक, फरमाया, हम चलिए हजरत हजरत अंबिया सुनिए की सुनिए जमात। सुनिए, हाँ शोहदा की हयात साबित है मान लिया, तो हाँ, क्या सवाल ये है, जवाब ये दीजिए कि क्या शोहदा अपनी कब्र में हम बिस्तरी करते हैं, इससे लज्जत तो हासिल तुम होती है, हाँ जवाब या ना? देने ही नहीं दे रहे हो तुम। हाँ दीजिए। हाँ, ये बात है कि हदीस में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि हम शोहदा के बारे में है, उनकी वफात के बाद उनकी रूहें हम्म। सब्ज परिंदों की पपोटों में होती हैं, वो जन्नत अच्छा में जिस तरफ चाहते हैं उड़ करके जाते हैं। अच्छा, ये आपने पढ़ा ना? तो ये तो फिर आपसे हाजिर सुना व होगा, नाजिर की ध्यान दलील हो सुनो गई, यानी शोहदा क्या? हाजिर व नाजिर भी है फिर। अरे भाई, जन्नत की बात रही, जन्नत की यार, अच्छा जन्नत की, तो यहाँ तो जन्नत कब्र की बात हो रही ना, कि कब्र में क्या? लज्जतें हासिल होती है, हम बिस्तरी भी करते हैं, यहाँ कब्र की बात कीजिए ना, कब्र का जवाब दीजिए। किसके? शोहदा की कब्र में उनको हम्म, लज्जतें हासिल होती है, वो हम बिस्तरी भी करते हैं, कब्र का जवाब दीजिए ना, जहाँ जन्नत का सवाल और जवाब थोड़ी है। यहाँ पर सवाल हुआ कि क्या अंबिया और शोहदा को कब्र में लज्जतें मुयस्सर है, तो उसका जवाब देते हैं कि हाँ, खाने पीने के साथ साथ वो अपनी कब्र में हम बिस्तरी भी करते हैं, जिससे उनको लज्जतें हासिल होती है। अच्छा तुम बताओ कि इन दोनों के हयात के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया हयात की बात ही नहीं हो रही है, मैं तो है? नहीं, कायल हूँ दोनों के हयात का। अच्छा दोनों की नौइयत बताओ हयात की। अंबिया अलैहिस्सलाम का मकाम ऊंचा है, ऊंचा है, बिल्कुल ऊंचा है, सब मानते हैं, शोहदा लेकिन ये बताओ शोहदा सुनिए, नौइयत बताओ किस नौयत तरह की दोनों की नौयत का हासिल है। सवाल ही नहीं है यहाँ पे, नहीं नौयत सवाल है का भाई, जवाब भी नहीं है। जब तक आपका आप सवाल हाँ या ना में मुकम्मल जवाब दीजिए कि क्या अरे शोहदा भाई, अपनी कब्र में ये हम बिस्तरी करते हैं। हाँ ना में जवाब नहीं होता। अभी तो हम कैसे भी हाँ होता है? ना वाला सवाल तो कर चलिए लेंगे, आप जवाब पूरा नहीं दे जवाब पाएंगे दे आप। दीजिए, पूरा जवाब दे हाँ तो दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे ना, मुकम्मल तहकीक होगी तब तो जवाब आएगा। हम्म। दोनों के हयात में क्या फर्क है? दोनों की हयात में बहुत फर्क है। क्या मसलन? अंबिया की हयात को शोहदा की हयात से जोड़ नहीं सकते। जोड़ नहीं सकते? हाँ मतलब वही, कैसे नहीं हाँ, जोड़ सकते, क्यों अंबिया नहीं जोड़ सुनिए, सकते? अंबिया का हाँ, मकाम यह है कि अल्लाह ताला ने उनको नस्स कतई से हदीस की साबित है, अल्लाह ताला ने उनको इख्तियारात दिए, वो जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं। जा सकते हैं, हदीस से साबित है, कुरान की आयत से साबित है। और दूसरी क्या बात शोहदा क्या के लिए भी कौन है। सी आयत है भाई? कौन सी आयत है? कौन सी चलिए, आयत है? मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ जब मैं सबे मेराज तशरीफ ले जा रहा तो मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ उसके बाद मस्जिदुल अक्सा पहुंचे, हाँ उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चौथे आसमान पे मुझे रोका, उन्होंने हाँ चौथे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका। हाँ और जब मैं नौ मरतबा, 7 से 9 मरतबा उन्होंने मुझे वापस भेजा हुजूर अल्लाह की बारगाह में कि नमाज हाँ के ताल्लुक से नमाज कम कराइए। हाँ हाँ तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार है अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज भी पढ़े, मस्जिदुल अक्सा भी चले जाए और चौथे आसमान पर भी पहुंच जाए, तो अल्लाह के रसूल को कितना इख्तियार होगा। दूसरी बात, बुखारी की ये हदीस बताओ है, पहले, ये सुनिए बताओ। सुनिए सुनिए, बुखारी की हाँ हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं मक्के का तवाफ कर रहा था तो मेरे आगे आगे मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने देखा कि हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम भी मेरे साथ मक्के का तवाफ कर रहे हैं। मतलब तुम इससे हाजिर नाजिर का अकीदा साबित तो करना ये तो चाह रहे अल्लाह ने इख्तियार दिया ना, जहाँ चाहे वहां जा रहे हैं। हो? सुनो सुनो, हाजिर नाजिर का क्या मतलब? हाँ, सिर्फ अभी उस पर बहस नहीं है, नहीं उस पर भी नहीं, बात कर लेंगे आपसे, अरे तुम खुद ले आए हो उस भाई। पर भी बात कर हाँ लेंगे, हाँ, उस बात पर कर लो भी पहले, बात कर लेंगे। आपने पहले बोला बात। कि पहले साबित करो कि हर जगह जा सकते हैं, मैंने साबित किया कुरान की हदीस की नस्स कतई से। अब आप साबित ये कीजिए कि कब्र में शोहदा को हम बिस्तरी करने से लज्जत हासिल होती है। ये सीरत हलबिया में आपके मौलाना असलम साहब ने लिखा, हफीजुल्लाह दारुल उलूम देवबंद। इसका जवाब दीजिए। ये मैं जो तुमसे वो उसके बारे में मालूम कर रहा हूँ, तुम घुमा करके पता नहीं मुझसे कुछ अरे मालूमात मत कीजिए, बताओ आप तुम। अपना ये जवाब दीजिए। दो ऑप्शन दो, मैं हाँ मैं और ना मैं साहिल हूँ, करूंगा। मैं साहिल, नहीं सुनो, नहीं, मैं मुझसे क्यों सवाल जवाब कर रहे हैं? मैं साहिल हूँ, मैंने आपकी बारगाह में ये हाँ इबादत रखी साहिल है, हूँ, आप मुझे सुनो 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 समझाइए। सुनो। साहिल के हर सवाल के हर शिक की पहले कादिस तहकीक होनी चाहिए। अगर किसी ने कह दिया भाई
हमने अगर दो कोई रकात नमाज आपसे ये पढ़ी है। पूछे, सुनो नहीं, सुनो, कोई आपसे हमसे ये कोई आकर पूछे कि सुनो हुजूर सुनो फजाइल सुनो, में, कोई अरे आपसे ये यार तुम तो पूछे, सुनने के लिए तैयार ही अरे नहीं है सुनिए बिल्कुल, सुनिए, तो इतने देर तक हम हमको सुनाए, अब सुनिए हमारी भी कुछ सुनिए। हाँ तो मुझे एक सवाल करें, वही मैं कोई कह रहा हूँ, आपसे हाँ, अगर ये पूछे बगैर तहकीक कि के कोई जवाब हजरत नहीं दिया जा गुस्ल सकता। में, सुनिए, कोई कोई, अगर आकर के मुझसे कह रहा है कि 2 रकात मैंने नमाज पढ़ी, क्या मेरी नमाज हो गई है, मैंने फर्ज की नमाज 2 रकात पढ़ी है जोहर की, मैं कैसे कर दूंगा हो गई कि नहीं होगी? मैंने कह दिया नहीं हुई, तो उसने कहा मैं मुसाफिर हूं, तब मेरा जवाब गलत हो गया ना। आप सुनिए ना तो हजरत, इसलिए मैं हजरत तुमसे हजरत पूछ रहा हूँ। हजरत, हाँ। मैंने आपसे हम्म। पूछा कि मोहतरम ये इबारत है, गुस्ल में कितने फराइज हैं? हाँ। आप मुझे समझाइए, तो आप मुझसे उल्टा सवाल करेंगे कि पहले मुझे ये बताओ कि हुजूर अब ने ये गुस्ल में क्या क्या किया, फिर हर मुझे ये जगह बताओ कि हर हदीस में सुनो क्या सुनो क्या है। सुनो, हर सवाल में नहीं होता ये, मैंने जो तुमको बताया इसमें वो सवाल तो होगा कि नहीं? मिसाल ही गलत आप दिया आपने, मुकीम, वो आप तो मुकीम है मिसाल ही गलत मुसाफिर। दिया आपने। जब 4 रिकात नमाज मौजूद है, 2 रिकात क्यों पड़ेगा? ये तो जाहिल आदमी भी नहीं पड़ेगा सुनो फर्ज 2 सुनो सुनो, रिकात नमाज जोहर अरे की। मुसाफिर 2 रकात पड़ेगा भाई, क्या कह रहे हो तुम? मुसाफिर पड़ेगा ना जनाब, हाँ तो हम मुसाफिर मालूम थोड़ी आपसे करेंगे। सवाल करेगा, जब उसको पता है कि मुझे 2 रिकात पढ़नी तो वो आपसे ओहो सवाल ही नहीं करेगा। भाई, हाँ हाँ, पता रहे तब तो, चलिए इसका जवाब दीजिए कि मालूम नहीं शोहदा करने अपनी के लिए। कब्र में हम बिस्तरी करते हैं। हाँ तो पहले तुम पूरी ये बताओ कि दोनों में तुमको मुझसे फर्क कुछ क्या मत समझ में? पूछिए आप, अरे मैंने भाई आपको जवाब दे दिया, हुजूर की हयात में और शोहदा की हयात में पहले फर्क है। यही पता नहीं है क्या फर्क है, तो आगे मैं तुमको फर्क, हाँ कैसे मैं जवाब बता दे रहा दूं? हूँ, चलिए। तुम्हारा ज़र्फ़ी फर्क ये ऐसा है, नहीं है कि तुमको सुनिए जवाब सुनिए, दिया फर्क फर्क ये है हाँ, कि शोहदा के ताल्लुक से हमारा ये अकीदा है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमा दिया हाँ, कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसको मुर्दा गुमान भी मत करो। वो खाते हैं हाँ, पीते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको रिजिक देता है, तुम्हें इसका शऊर नहीं है। हाँ, अब ये तो हमें पता लग गया रिजिक देता है हाँ, अपनी कब्र में। ठीक, तो अब ये कुरान की आयत में ये तो नहीं है कि वो हम बिस्तरी भी करते हैं, ये तो हाँ, आपके ठीक, मुसन्निफ ने लगाया है यहाँ पर। तो जब ठीक। मुसन्निफ ने लगाया है तो उसका हवाला दीजिए। अब ये बताओ, ये कैसे फ़र्क तुमने बयान किया? क्या फर्क बयान किया? नबी और शहीद में क्या फ़र्क हुआ अब? अब फिर आप वही तरफ चले गए, मैंने आपको मुकम्मल जवाब दे दिया कुरान से। ये मुकम्मल जवाब था। आप शोहदा पर एक रहिए ना, नबी को शहीद तो की आपने नहीं बरी नहीं, कर दिया। सुनो सुनो, सुनिए, नबी की बात को तो आपने बरी कर दिया देखो तुम इस्तदलाल करके। अलग शोहदा जा का रहे हो जवाब तुम। दीजिए, शोहदा का जवाब दीजिए बस। बात पर ना, हाँ हाँ, हमसे जवाब, मैं जवाब ही देने के लिए शोहदा तुम्हारे का पास फोन जवाब किया हूँ। दीजिए कि फोन शोहदा किया हूँ अपनी जवाब कब्र ही में, देने के लिए भाई, जवाब ही मैंने देने के आपको लिए। फोन किया था, आपने जो मलफूजात की इबारत पे ये कहा ये गुस्ताखी है, किसी देवबंदी का बाप भी नहीं साबित कर सकता, और आप इस पर तावील कर रहे हैं। जब आपकी तावील किताब में कैसी फंसे, तावील भाई, कैसी आप कह रहे हैं तावील? कि शोहदा का मकाम बताओ और अंबिया का मकाम बताओ। ओ जब ए, मैंने हुजूर बरी के कर बारे में दिया, उसमें लिखा ही नहीं, हुजूर के बारे में वहां लिखे तुमने लिखा गलत। हुआ है सुनो सुनो, तुम अंबिया नबी के और सुनो सुनो शोहदा, अरे अंबिया भाई और सुन लिया करो शोहदा। बात, बात तुम्हारी सुनिए, पूरी हो गई? चलिए पूरी हो शोहदा के गई? बारे में बताइए। नहीं बात पूरी हो गई। मैं अब खामोश सुनिए, हूँ। हाँ एक मिनट सुनिए। तुम पहले लेकर के आए नबी की बात, नबी की हयात की बात, हम स्त्री की बात। मैंने कहा हम उसमें बिस्तरी नहीं है एक, उसमें, सुनो सुनो, हाँ शाबाशी हाँ है। वो शब्बासी, हाँ, तो शब्बाशी मैंने का माना तुमको आप हम बता दिया। बिस्तरी लेते हैं क्या? नहीं नहीं चलो, शब्बासी जो हाँ, भी उसके अंदर माना अच्छा, होता है। अब बुखारी की और हदीस, औरत के इसका साथ शब्बासी इस्तदलाल का मतलब अल्लामा तुम कुछ और जुरकानी, लेते होगे। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ अल्लामा जुरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इबारत का जो मैंने आपको भेजी मलफूजात की, इसका इस्तदलाल कौन सी हदीस से किया था मालूम है आपको? क्या? अल्लामा जुरकानी ने कौन सी हदीस से इस्तदलाल करके ये लिखा है मालूम है आपको? ये मैं जितना तुमने सवाल किया ऊपर की जो इबारत है, अगर पीछे की आप इबारत, उस पढ़ेंगे, इबारत के सुनिए, अंदर जो अगर लिखा आप पढ़ेंगे बुखारी हाँ, शरीफ हदीस नंबर 20-75, चकमा न दीजिए भाई, सुनिए ना, बुखारी सुनिए हमने ना, पढ़ रखी है, सुनिए, इबारत भी अरे हमें आपने पढ़ने नहीं आती है। पढ़ी, हाँ, सुनिए ना, अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ी हाँ। बुखारी शरीफ की हदीस अब इबारत पढ़ेंगे, क्या तुम पढ़ नहीं सुनिए तो पाओगे। अरे सुनिए तो सही, बुखारी हाँ, शरीफ की हदीस आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, उनकी बाज बीवियां उनसे पूछती हैं कि अल्लाह के रसूल सबसे पहले आपसे कौन सी जोजा जाके मुलाकात करेंगी? हाँ, अल्लाह के रसूल फरमाते जिसके हाथ सबसे लंबे होंगे। सही, तो हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा हाथों को नापती हैं, हाँ, और उसमें सबसे पहले जो इंतकाल होता है वो हजरत जैनब रजी अल्लाह तआला नापती अन्हा है का तो होता है। किसका किसका हाथ सुनिए लंबा ना, सुनिए निकलता ना, है? सुनिए ना, वो उनकी एक बीवी का निकलता है, तो किस उनको क्या मुबारकबाद नाम था, दी क्या जाती है। नाम था, क्या नाम चलिए था? नाम बता देता हूँ हदीस देख करके, ओहो, मुद्दा नाम पर नहीं है। अब मैं सुनिए, मुझसे हाँ पूछो, हाँ, मैं सुनिए ना, मेरे पूरा सामने पूरा किताब पूरा नहीं, पूरा बोलने, पूरा बोलने, हजरत सौदा हाँ, रजी अल्लाह हजरत अन्हा, हजरत सौदा रजी सौदा, अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है। छोटी हाँ सी से, हाँ हाँ, सौदा सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हाँ, तो उनका हाथ लंबा, तो उनको मुबारकबाद दी जाती है। लेकिन हजरत जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल पहले होता है, और हाथ लंबे से मुराद सदका और खैरात करने वाली, हाँ बिल्कुल। ठीक। तो अब बताइए हजरत जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मुलाकात कहाँ जाके की हुजूर से? हुजूर कहाँ है? ओहो, तुम ये बात यहाँ से ला रहे हो? लाहौल बिला कुव्वत, ये हदीस में लिखा है, मैं क्यों लाऊंगा? हाँ हाँ हाँ, जब मतलब अम्मी यहाँ से आयशा ऐसे का कह रहे हो। कॉल है कि सबसे पहले मुलाकात हजरत जैनब ने जाके की, ठीक ठीक, ठीक, तो तो इस कहाँ पर तुम जाके की? कहना, इस पर इसके क्या कहना इस्तदलाल में, इस इसकी पर क्या शरह कहना में चाहते? अल्लामा जुरकानी, इसकी शरह में अल्लामा जुरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हाँ, किताब
فتاوی ہاں زرقان کے اندر یہ لکھا حاضر و ناظر پر بحث کرتے ہوئے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے موجود ہے کہ ان کی بیویاں ان کو پیش کی جاتی ہیں، وہ شباشی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے آپ اس کو ہٹا دیجئے، اب مجھے اس نہیں کا تو اب جواب دیجئے، تم سیرت حلبیہ کا جواب دیجئے. ارے بھائی تم یہاں مجھ سے آ کر کے یہ کہہ رہے ہو نا کہ حضور یہ تمہارے علماء نے لکھا ہے، ہمارے علماء یہ نے اس کا لکھا ہے. جواب ارے ہمارے علماء نے لکھا ہے ہاں تو آپ کے علماء سیرت کی تو حلبیہ. کتاب ہے تو سیرت میں نے حلبیہ. میں نے وہ تم کو بتا دیا نا، اس پر نہیں لکھا ہوا کہ بتایا اس نا، کا جواب آپ نے کہا کہ شہدا کے بارے میں لکھا ہے تو شہدا اپنی قبر میں ہم بستری کرتے ہیں. بھائی رک جاؤ، شہدا کی پہلے بات، تم نبی کی بات پہلے چھیڑا تھا اللہ اکبر. میں نے کہا تم نے دونوں نبی کی عبارت. بات چھیڑی تھی، اچھا مجھ پڑھیے، سے سوال کیا پڑھیے تھا؟ تو، سوال پڑھیے تو، نہیں سنو پہلے تم سوال نے پڑھیے. یہ میں جو کہہ رہا سیرت ہوں حلبیہ کا تم نے سوال ایسا پڑھیے. تم نے ایسا کہا سیرت تھا کہ نہیں؟ حلبیہ کا سوال میں پڑھیے. یار تم اس طرح بات نہیں ہوتی ہے، پہلے دیکھیے میری بھی بات دیکھیے سن لیا کرو. جناب علم حوصلہ سنیے. رکھو، حوصلہ رکھو سننے کا، اگر سنا رہے ہو تو سننے کا حوصلہ ہاں رکھو. تو سوال ایسا پڑھیے نہیں ذرا، ہوتا. سیرت حلبیہ کا سوال پڑھیے تو. تم نے مجھ سے کیا کہا تھا سیرت یہ پہلے حلبیہ میں نے ارے آپ کو یار تم عبارت تو بھیج یار دی تھی. عجیب آدمی. بھائی ضرب بڑا رکھو، بات کر رہے جناب ہو جناب جناب سائل بن کر کے بات کر رہے ہو تو جناب کچھ احترام سامنے والے سیرت کو کیا حلبیہ جاتا کا ہے. سوال پڑھیے. تم نے سوال کیا تھا مجھ سے، میں سیرت نے کیا حلبیہ تھا. والے نے مجھ سے سوال کیا تھا بھائی. سیرت حلبیہ کتاب میں لکھا ہے نا. نہیں سوال کس نے کیا تھا؟ سوال کس نے کیا؟ سیرت حلبیہ کے سوال تعلق سے کیا تھا. مصنف آ کر کے مجھ سے سوال کر رہے تھے. نہیں چلو میں نے کیا تھا. تو ہاں تو تم نے سوال کیا تھا میں نے بتاؤ. کیا تھا، سنو میں نے ہاں کیا تم تھا. نے کیا کیا حضرت تھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے بارے میں اگر کوئی سوال کہے حضرت میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ہاں حضرت یہ ملفوظات کی عبارت ہے، اس میں یہ عبارت مجھے سمجھا دیجئے. تو آپ نے کہا یہ گستاخی ہے. اچھا وہاں شہدا کی بحث، ایک منٹ سنیے. شہدا کی بحث سمجھانے کی. انبیاء علیہ السلام کے تعلق تو سے تھا نا. اب اب یہاں سنیے نا، انبیاء کی بات سنیے نا، حل نہیں ہو پا ارے رہی ہے سنیے تم. نا، سنیے نا. ہاں آپ نے کہا وہ گستاخی ہے، تو میں نے بولا اس پر حکم کیا آئے گا. آپ نے بولا کہ گناہ ہے. میں نے ہاں بولا اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو اللہ کرے گا. چلیے ہو گئی بات وہاں ختم. ہاں پھر میں نے آپ کو یہ سیرت حلبیہ بھیجی، اس کی میں نے عبارت پڑھی. حضرت یہاں سوال ہے کہ کیا انبیاء اور شہداء کو قبر میں ہاں لذت حاصل ہوتی ہے؟ تو جواب کیا ہے کہ ہاں، جس طریقے سے کھانا پینے کے طریقے سے وہ اپنی قبر میں ہم بستری بھی کرتے ہیں، اس سے بھی لذت حاصل ہوتی ہے. انبیاء کرام کے بارے میں بھی. یہاں تو دونوں سوال میں دونوں نام ہے، ہاں ہاں انبیاء اور ٹھیک. شہداء. اب پھر اب آپ نیچے نے یہ جب کہا، آیا اب سنیے جب سنیے نیچے سنیے ہاں سنیے آپ نے یہ ہاں کہا کہ نیچے استدلال ہے کہ یہاں سے انبیاء کو قیاس کیا انہوں نے، یہاں سے انبیاء مراد نہیں لیا جائے گا. چلیے ہو گیا. شہداء تو مراد ہے نا. ہاں شہدا ہے. تو شہداء کیا ہم بستری کرتے ہیں قبر تو میں؟ وہی میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم مجھ کو سے کیوں اتنا پوچھ رہے پتا ہیں؟ ہے. آپ جواب ارے دیجیے نا بھائی، بھائی. ارے میں پھر وہی بات لا ہے یار. حول ولا قوت. مطلب سوال اس میں لکھا ہے، سب کچھ موجود ہے. آپ جواب دیجیے کہ کیا شہداء اپنی قبر میں ہم بستری کرتے ہیں، ہاں یا نہ؟ اس میں عبارت کا تم کیا کو ابھی مطلب ہے؟ پوری تحقیق کے بغیر اگر تم کو تمہاری پوری بات سنے ہوئے آپ نے بغیر جواب تین دے دوں گھنٹے پھر لیے، ایک 3 گھنٹے ایک لیے آپ نے ارے تحقیق کرنے کے لیے، پھر آپ نے فون کیا مجھے. ارے میری پڑھائی چل رہی تھی اس لیے میں نے لیے، ورنہ چلو اب ہاں تحقیق کر کے بتاؤ، کیا شہداء کو اللہ نے کہیں تحقیق قرآن نہیں. کی آیت، تم کو اتنا پتا ہے، کوئی اتنا سوال قرآن کی آیت، اتنا. سنیے حضرت ہاں قرآن کی کوئی آیت میں اللہ نے فرمایا کھانے کے لیے؟ تو فرمایا اللہ نے کہ ان کو اچھا یہ رزق تم دیا کو، جاتا اچھا ہے. یہ بتاؤ تم کو پتا نہیں ہے کیا؟ کہ انبیاء اور شہداء کی حیات میں فرق ہے؟ یہ سیدھا بتا دو. نہیں آپ مجھے پتا کیوں تو میں گھما بتا رہے دوں. ہیں؟ آپ نہیں گھمائیں گے، میں گھوموں گا نہیں نہیں. اسی پر میرا میں کہہ جواب اسی رہا پر ہوں معلق ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کو رزق دی جاتی ہے. یہ تو ہمیں پتا ہے، رزق. رزق دی جاتی ہے. رزق، ہاں 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 رزق دی جاتی ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. ہاں. تو اب یہاں پر صرف اتنا لکھا ہے، تو آپ کے عالم نے لکھا ہے وہ ہم بستری بھی کرتے ہیں، وہ کہاں لکھا ہے وہ بتا دیجئے. تو میں تم سے یہ سوال کروں، میں پھر مجھ سے تمہارا کیوں جواب سوال کر رہے ہیں؟ آپ پتا. جواب ارے دیجئے نا بھائی. سائل تم ہو بھائی، پوری سوال کی تحقیق میں تم سے کروں گا کہ یا کسی اور سے کروں گا؟ بتاؤ. سامعین اکرام یہ ہے ان کا حال، دیکھ لیجئے. ہاں یہ لوگ یہ اپنے اکابر کو بچانے کے لیے پوری جور کوشش فالتو کر گیری رہے نہیں، ہیں، فالتو لیکن گیری بچا نہیں. نہیں پائیں گے. تم کو ابھی پتا نہیں، ضرب یہاں بڑا ہے، کچھ صاف علم لکھا ہوا نہیں. ہے، ایک انہوں نے لفظ یہ کا کہہ علم نہیں، دیا کہ ملفوظات کی عبارت ایک لفظ غلط کا ہے. علم نہیں. پہلے تم بتا ٹھیک ہے، مجھے تو لیکن خوب یہ پتا ہے سیرت حلبیہ کہ میں دونوں پھنسے کی ہوئے ہیں. انبیاء اور شہداء کی زندگی کے اندر دونوں حیات میں دونوں کا فرق ہے. فرق ہے انبیاء کو جو ہاں جسد عنصر کے ساتھ انبیاء کی انبیاء کو حیات میں اور شہداء کی انبیاء حیات کو حیات. آپ ملا نہیں سکتے. آپ سنو ملا سنو کیوں رہے ہیں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، انبیاء کی آپ حیات ملا جو ہوتی کیوں ہے رہے ہیں جسد مجھے یہ عنصری کے بتائیے. ساتھ ہوتی ہے. اور آپ ملا کیوں رہے ہیں؟ میں یار چوتیا آدمی ہوں، پہلے یہ سن گالی لو نہیں، میری بات گالی نہیں، پوری. گالی نہیں. میری بات آپ پہلے بڑے کو بات چھوٹوں سے ملا کیوں رہے ہیں؟ سننے کے پہلے حوصلہ اللہ پیدا تعالیٰ کرو. قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میرا نبی کسی کا باپ نہیں اور میرے ارے نبی سے بھائی، بڑا مقام کسی کا نہیں. تو آپ ملا کیوں رہے ہیں؟ ارے بھائی جاہل آدمی، پہلے میں وہی فرق بتا رہا ہوں تمہارے جو شہداء اور انبیاء کیوں کے درمیان بتا جو رہے ہیں تم کو فرق؟ نہیں آ آپ رہا جواب دیجئے ہے. ارے شہداء کا. عجیب آدمی، اگر میں تم سے کہوں تم ہاں، حرامی یہ والا جو زنا، لا ہاں نہ حول میں ولا جواب دو. قوت. دیکھیے اب مفتی ہو کے دونوں میں گالی سے بک رہے ہیں. نہیں، میں پوچھ رہا ہوں دونوں میں لا سے کہوں حول ولا. ایک ایک. میں دونوں میں تم سے نہیں ہاں ہوں. ایسا میں ایسا تو اگر دونوں میں سے نہیں ہوں. نہیں ہو دونوں میں سے، نہیں. تو اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ تم سور نہیں کھاتے، چلو اس کو ہٹا دو. بوکھلا گئے بکواس مفتی صاحب آپ. بوکھلا نہیں تو سوال کی طرف آ جاؤ.
सवाल का जवाब दीजिए, बदतमीजी मत कीजिए, थोड़ी मुफ्ती का एहतराम तुम कीजिए। तुम असल में हाँ बोलिए बोलिए। गुस्सा दिला ही देते हो। ला हौल ऐसी बिला कुव्वत। मैंने ऐसी जबान कहा इस्तेमाल करने पर तुम मजबूर हो। क्या शौदा खाने के साथ साथ कब्र में हम बिस्तरी भी करते हैं, इसका जवाब दीजिए। देखो सुनो, हम्म, करते हैं, लेकिन ला हौल बिला उनको कुव्वत, मतलब हम उनको बिस्तरी करते हैं। सुनो सुनो, उनको कौन सी जिंदगी हासिल है, उसी पर तुम्हारा जवाब मुअल्लक है। देखिए सामिन, उनको आप सुन रहे हैं ना, देवबंदी आलिम की आदमी। जुबानी सुन। हेलो, जी आप तो गुस्सा हो के चले गए हजरत, जवाब नहीं दिए और बोले कि हम बिस्तरी करते हैं शौदा अपनी कब्र में। बस इतने ही तुमने सुना। चलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। यही बात है, पूरी बात सुन लिया करो, सुनाइए सुनाइए। हौसला नहीं रखते। अच्छा, वो मालूम कर लिया कि नहीं आपने, क्या? दोनों की हयात में कुछ फर्क है कि नहीं? मैंने तो आपको कह दिया कि बड़े की हयात छोटों की हयात से कंपेयर नहीं की जाती। तो लेकिन ये बताओ, उनकी हयात में क्या फर्क फर्क बयान कर सकते हो भाई? फर्क मुख्तसर में ये बता दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से हयात है वो दुनिया से बेहतरी जिंदगी में है। लेकिन वो आपकी जिस और जैसे शौदा मंसूर की के जो आप साथ है। बात कर रहे हैं, सुनिए, शौदा की जो हाँ, बात कर रहे हैं वो हुजूर के सदक़े से हयात हैं, और हुजूर जो है ना वो हाँ, अल्लाह की अता से हयात हैं। और शौदा है तो ये तो सौदा पे अल्लाह का कर, सुनिए ना, आप हाँ, बुरा नहीं बोलने दे रहे हैं। हाँ, चलो बोलो। शौदा पे अल्लाह का करम हुजूर के जरिए हुआ हाँ, बेशक पूरी उम्मत पर है ना। कर्म हुआ। तो हुजूर हुजूर, के सदक़े जो हयात है, आप उसकी हयात को हुजूर से कैसे मिला देंगे भाई? लेकिन ये बता सकते हो कि ना कि जैसे हुजूर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि क्या आप गरीब आदमी हैं, आपको एक आदमी ने पैसा दे के अमीर बना दिया, आप अमीर बन गए। अब मैं पूछूं कि तुम्हारी अमीरी में उनकी अमीरी में क्या फर्क है, तो फर्क ये है कि उसने आपको अमीर बनाया है, उसने दौलत दी है, उसकी अमीरी में आपकी अमीरी ये में कोई फर्क नहीं है। ये होगा ना, हम्म, मालदारी में दोनों में फर्क होगा ना। फर्क इसके होगा। पास इसी 25 करोड़, तरीके से इसके पास 10 करोड़, ठीक। हयात, हाँ। हाँ, तो अब मैं पूछूंगा, इसकी इनकी कैफियत क्या है जिंदगी की? कैफियत जिंदगी की ये है हम्म, कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने वादा किया है कुरान के हम्म, अंदर कि ये जो कैफियत शहीद, बता। जो अल्लाह की राह में शहीद हाँ, हो जाएं, अल्लाह से तो बात, हाँ, अल्लाह ने वादा किया ना अपने नबी से। हाँ, हाँ, ये आयत अल्लाह ने अपने नबी की तरफ भेजी ना, हाँ, कि अपने जितने सहाबा इकराम है सबसे ये कह दो, हम्म, क्या है नबी, कुल कह दो कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उनको मुर्दा हम्म, गुमान भी ना करना, वो जिंदा है। हम्म। तो ये आयत मेरे नबी ने कहाँ बताई। भाई, ये कौन सुनिए सी ना, आयत पढ़ सुनिए। रहे हो भाई? अरे यार, कौन सी ये आयत पढ़ रहे हो? जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए वो जिंदा है। अरे भाई, कुल कहाँ उससे पहले है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो नबी को बोला ना मेरे अल्लाह ने कि तुम कह दो, नहीं कहा। मतलब नबी अलैहिस्सलाम ने जो कहा, को बेला भैया, कहने को क्या कुरान में कहेंगे मत अरबी जोड़िए, में? कुरान में मत जोड़िए। अच्छा कहाँ अच्छा, सुनिए कहने सुनिए, के लिए लफ्ज ही नहीं वहां भाई। चलिए वला सुनिए। तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी अरे सबिलिल्लाहि मौत, सुनिए साफ सुनिए सी सुनिए आयत है। सुनिए सुनिए, हाँ, अल्लाह के रसूल जो कलाम करेंगे किसी हम्म, सहाबा के सामने, तो उसको हम्म। क्या कहा जाएगा? कहना कहा जाएगा ना। हाँ, तो जो तो तुम मैंने कुल उसका कह रहे हो, कुल तर्जुमा कहाँ से? अरबी में, नहीं, नहीं, अगर नहीं। मैंने उसका तर्जुमा अरबी में कह दिया कुल, तो इसमें क्या ओहो, क्या बात है? आयत तो पढ़ नहीं रहे हो, कुल पता नहीं कहाँ आप निकाल रहे सुनिए, हो, ये कौन सी बात हुई? आप सुनिए, हाँ, थोड़ा थोड़ा आराम से, इत्मीनान से। तो अब नहीं, बिल्कुल अल्लाह के इत्मीनान से तुम रसूल बोलो। सल्लल्लाहु ताला अलैहि हाँ, वसल्लम के सदके तुफैल हम्म, सौदा जिंदा है, चलो, ठीक है ना। चलो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हयात जिंदगी है उसमें हम शुमार नहीं कर सकते, उनको चलो, मिला नहीं सकते। चलो, सौदा जो जिंदा है वो अल्लाह की अता से, अल्लाह के रसूल के सदके से जो जिंदा है, वो अल्लाह ने जो कुरान में बयान कर दिया कि उनको रिज़्क दिया जाता है और वो जिंदा है। हाँ, तुम्हें इनका शऊर नहीं है, हमें नहीं हम्म, है शऊर। हाँ, अब अल्लाह ने यहाँ साफ क्लियर कर दिया, हमें शऊर है ही नहीं। हाँ, तो जब हमें शऊर नहीं है तो इबारत में ये कैसे लिख दिया कि वो हम बिस्तरी भी करते हैं? अच्छा, तो ये बताओ, उनकी रूहें कहाँ हैं? अल्लाह अकबर शुहदा की, कबीरा। शुहदा अरे की। जाहिर सी बात है, जब अपनी कब्र में जिंदा है तो रूह के साथ जिंदा है। चलो, उस रिवायत के बारे में क्या कहोगे जो मैंने हदीस तुमको सुनाई थी, कौन सी हदीस? कि ये इनकी शुहदा की वो रूहें जो हैं, हाँ। वो सब परिंदों के पपोटों में होती हैं, जन्नत में जिधर चाहती हैं उधर उड़ के जाती हैं। यहाँ और जन्नत जा की फिर बात नहीं हो रही, जा, अरे भाई, कब्र जन्नत की की बात बात हो तो रही है, कब्र की बात हदीस, करो, कब्र की हुजूर की बात बात, करो, सुनो, हुजूर की कब्र बात की हो बात, रही है। कब्र की बात करो। हुजूर, फिर आप हुजूर की बात कर रहे हैं, मैं शौदा की तरफ हुजूर, लेके आ रहा हूँ, आप बार बार हुजूर की तरफ चले जाते हैं, अरे भाई, कब्र की बात शरीयत करें। शरीयत की रोशनी में कुरान और सुन्नत से मसाइल हल होंगे कि तुम्हारी बात से हल होंगे भाई? मुफ्ती साहब आप बौखला गए, आप अपने अकाबिर बौखलाया का बिल्कुल नहीं, कुफ्र नहीं ढो बिल्कुल नहीं। पाएंगे। बस तुम सुनने का हौसला तुम्हारे अंदर नहीं मैं है, कह रहा बस। हूँ नहीं ढो पाएंगे कुफ्र आप। अरे भाई, तुमको क्या, तुम्हारे तुम अभी काफिर हो गए हो?
मुझसे सलाम किया था, तुम काफिर हो गए अपने मैंने अकाबिर सलाम की रोशनी में, अकाबिर की रोशनी में। एक मिनट, मैंने आपको सलाम किया था मिसाल के तौर पर। हाँ अगर किसी का कुफ्र वाजे हो जाए या किसी का हाँ ऐसा अकीदा वाजे हो जाए सामने वाले का, मिसाल के तौर पर हाँ कि वो काफिरों के साथ रहता है या उसका अकीदा भी वही है, हाँ। तो जब ये पता लग जाए तब वो सलाम कलाम करना मना है या शुरू में सलाम कलाम करना मना है? अच्छा, तुमने मुझको क्या समझ करके मेरे पास फोन किया था? देवबंदी ही ना? मैंने तो देवबंदी समझ के फोन किया था, बस अकाबिर। बस तुम्हारे तो मैंने हजरत ने सलाम किसको का जवाब काफिर नहीं कहा था? दिया। किस? अरे भाई अच्छी तरह मालूम है। आप सुन लीजिए, तुम मैंने रिकॉर्डिंग की अस्सलाम पहले वालेकुम कहा वाली। है, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा है और वालेकुम ओ अस्सलाम कहा भाई, है। समझ अच्छा गए? रिकॉर्डिंग सुना दूंगा मैं, लगाऊंगा जब। अच्छा मैं अच्छा, तुमसे ज्यादा डेढ़ सियाना हूँ, समझे? ये मामला है। ये अब मुझे मामला है। क्या समझ करके मेरे पास फोन किया तुमने? मैंने ये समझ के फोन किया, जब मलफूजात की इबारत आप भोले भाले हाँ, लोगों को भेज रहे हैं तो इसका जवाब कौन देगा सीरत हलबिया का? तो उसका तो जवाब तुम्हारे सामने आ गया। कहा हुजूर जवाब? का अभी मामला तो आपने हुजूर ये का। इकरार कर लिया कि शोहदा हम बिस्तरी करते हैं अपनी कब्र में, अभी आपने अपनी वॉइस में बोला, अरे भाई अभी पूरी बात वॉइस में सुन ले बोला भाई, आपने। अरे भाई पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। हाँ हाँ। यही तो काट छाड़ का मामला रहता है। नहीं 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 नहीं। मैंने तुमसे जो कहा, हुजूर और शुहदा की जिंदगी में अच्छा एक फर्क बात क्या है? बताइए, हुजूर के बारे में है कि हुजूर अंबिया किराम जो अपनी कब्रों में नमाज भी पढ़ते हैं। अब तुम शोहदा नहीं बताओ, पढ़ते? अब तुम शोहदा नहीं पढ़ते? कहाँ से साबित करोगे शोहदा इसको नहीं तुम? पढ़ते? कहाँ से साबित करोगे तुम? आप बताओ, साबित मना कर रहे हैं तुम ना, बताओ। आप दावा अच्छा कर रहे हैं ना नहीं पढ़ते? अच्छा, तुम क्या कहते हो? तुम क्या अच्छा कहते आप हो? सुनिए, अल्लाह के शुहदा रसूल के की बारे में तुम हदीस क्या है, कहते अल्लाह के हो? हाँ रसूल की हदीस है हाँ कि मोमिन जो होता है वो हाँ। अपनी कब्र में नमाज भी पढ़ता है। कौन सी रिवायत है भाई? और मोमिन जो होता है, सुन नहीं लीजिए, कौन, नहीं मोमिन जो नहीं, होता ये है, हदीस हदीस हाँ मैं मुझे बताओ, बता रहा हूँ, भेजो मेरे मोमिन पास। जो होता है वो अपने हम्म। जान पहचान लोगों को भी पहचानता है, जो उनकी कब्र पे आके सलाम करते हैं वो पहचानता भी है, उसका जवाब भी देता है। और वो ये अपनी कब्र में सुनिए, उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है, यानी बढ़ा दी जाती है, और वो वो तो अपनी सब कब्र वो, में हाँ नमाज हाँ, भी पढ़ता है। ये है ये तो तो नमाज नहीं पढ़ता है? इन नकला तो समझ मोता वाला तो समझ सुमत। हाँ अरे तो नमाज नहीं पढ़ता शोधा मतलब अपनी कब्र में? यहाँ से तुम साबित करो नमाज पढ़ते। माज़अल्लाह। तो आपके 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 कासिम नानोतवी के बारे में क्यों लिखा है फिर ये तुम पहले बताओ कि कहाँ से तुम कासिम अली साबित। नानोतवी? सुनिए, कासिम वो अली रिवायत नानोतवी, तुम बताओ सुनिए मुझे। ना, सुनिए ना, नहीं सुनिए नहीं, ना, मुझे वो रिवायत बताओ सुनिए, जिससे शुहदा नमाज मिशकात पढ़ते हो शरीफ की साबित हो। हदीस है, सुनिए, इबारत पढ़ के बताओ। बताऊंगा, सुनिए, पहले मुझे हाँ पूरा नहीं नहीं पूरा अरे बोलने भाई, दीजिए। अरे पढ़ ये तो कौन दी सी भाई बात है? इबारत, तुम्हारी बात उसी पे इबारत पढ़ तो मुरतब है। दी कि उसकी कब्र मिशकात जो पोशीदा कर दी जाती है और वो नमाज भी पढ़ते हैं। ये हुजूर की रिवायत है। हाँ ये हदीस है, हुजूर ने फरमाया है उर्दू हदीस है में। ये हदीस। अरे भाई उर्दू में फरमाया है, ये हदीस है अच्छा उर्दू में। आपको अरबी चाहिए? हाँ। अच्छा हमारी बहस अरबी पे हो रही है? नहीं नहीं, अरे भाई हुजूर की फिर बात क्यों पर हो इधर से रही उधर है। छलांग मार रहे हैं? ज्यादा नहीं सियाना मत बनिए, नहीं, बिल्कुल जो बिल्कुल, मैं बात हो खूब रही है उस सियाना पर हूँ, जवाब खूब दीजिए। सियाना हूँ भाई, खूब सुनिए, सियाना खूब। आपका हमारा जो मुतालबा वो अरबी में नहीं है, आपकी अगर आपको अरबी में बात करनी है तो चलिए मुझसे अरबी में बात करिए, मैं बात करने की बात कर रहा हूँ, चलिए। बात लुगत करने की बात अरबिया, कर रहा हूँ। चलिए चलिए, अरबी में कुल बात कुल करने की लुगत बात कर। अरबिया, चलिए आइए शुरू होइए, अरबी में आइए, ले ले ले, आइए 9 सर पहले सही करके आइए, आइए 9 ना, सर चाहिए ना, अरबी में बात अच्छी तरह करिए बात ना, करने आता। चलिए चलिए मुझे चलिए, पता शुरू तुम करिए, जरूरत से शुरू बुकमान। करिए, अरबी में बात करते हैं, चलिए शुरू करिए, अच्छी तरह चलिए। तुम समझ लो, मैं तुम्हारा आगे आप बात नहीं जैसे डेढ़ बढ़ाऊंगा जब सियाने को मैं वो रोज रिवायत चलाता हूँ, सुनिए वो मेरी रे, बात, आप अरे हमारी यार बात उर्दू में हो चलाते रही है होंगे, ना, हमारी बात चलाते। उर्दू में हो रही है। हाँ हाँ तो अब तो सुनिए, ये कुरान हराम, की ये आयत सुनिए, कैसे? सुनिए सुनिए, कुरान की आयत मैं पूछूं तुम बताओगे कि नहीं बताओगे? कहाँ से? कुरान की आयत थोड़ी पूछी आपने, नहीं, अगर मैं पूछूं तो तुम अरबी में बताओगे कि नहीं? वो हमारी बात डिस्कस, उस पे आपको बहस करनी है ना अरबी पे, तो आप मुझे कॉल काट के अरे दोबारा कर भाई, लीजिए। मैं अरबी पूरी बात जबान पर बताऊंगा, बहस, जहां से अरबी बोलेंगे वहां से जबान पर कुरान बहस की नहीं हो आयत भी रही है। पढ़ूंगा। अरबी सुनिए, जबान पर बहस नहीं हो रही मोहतरम है, मोहतरम इस पर बात हो रही है। मोहतरम हुजूर, मोहतरम हुजूर का कलाम, मोहतरम मोहतरम हुजूर की बात मोहतरम कौन सी है? सुनिए सुनिए मोहतरम, अगर हम्म। आपको अरबी ही सुननी है मुझसे तो मैं कॉल काट देता हूँ, दोबारा करता हूँ। आप कुरान को जहां से बोलेंगे मैं अरबी भी पढ़ूंगा, उसका उर्दू भी पढ़ूंगा, उसकी तफसीर भी पढ़ूंगा। अरे भाई ये छोटी सी रिवायत अब तुमने पढ़ी दूसरी है, बात मैंने सुन कहा लीजिए, उसकी अरबी बताओ बस। अब दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए। हम्म पहली बात ये कि आपने ये कहा, पहले तो आपने हम्म इनकार कर दिया कि शौदा हम्म। नमाज नहीं पढ़ते, दावा किसने आपने कहा? किया, आपने कब कब दावा मैंने, किया, अभी नहीं नहीं, अभी कब अभी मैंने? अभी 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 बोला शोहदा नमाज रिकॉर्डिंग। नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं? अरे मैंने कहा कहाँ से साबित पढ़ने करिए के कायल यार? हैं आप? पढ़ने के कायल हैं? तो खुदा का खौफ करो आपका भाई। क्या मैंने कीदा, मैंने आपका क्या तुमसे कीदा पूछा, है, आपका मैंने क्या तुमसे कीदा है, पूछा, मैंने तुमसे पूछा है, आपका क्या कीदा है, ये मैंने तुमसे पूछा भाई। आपका क्या कीदा है? मुझे छोड़ दीजिए। मेरे सामने से ऐसी रिवायत नहीं गुजरी, तुमने चलिए कहा तो आपका रिवायत है, अकीदा ये देखिए, इसलिए सामने इकराम इसलिए गौर मैं करिए, तुमसे रिवायत, इनका अकीदा ये है कि इनके सामने से मैं, जो रिवायत नहीं ये गुजरेगी ये मुझसे उस पर बात ईमान करो, नहीं मुझसे रखेंगे। बात करो भाई, मुझसे बात करो, इस चले, किसी और को मुखातब करके अब बात जरा मत मुझे करो, बता दीजिए, मुझसे बात मुझे करो। बता दीजिए कि शौदा अपनी कब्र में हम बिस्तरी करते हैं। लो, पूरी बात तुमको पता नहीं, ये बताओ दोनों की हयात में फर्क क्या है, उसके बाद मैं बताता हूँ इसकी पूरी वजाहत। अल्लाह अकबर, कितनी बार बताऊं कि कब्र में मैंने कहा अंबिया की मिस्त्री करता, हयात, मैंने कहा कब्र में हम आपके में हम आलिम ने, मिस्त्री करते आपके हैं। आलिम ने
क्या लिखा है, क्या पढ़ कहा? लीजिए, क्या कहा? सीरत हलबिया। तो मैंने कहा तो उनकी तुम वो बताओ ना, तो उनको लात मारो, पहले उनको बोलो कि गलत लिखा उन्होंने, किसको लात मारो? अपने अकाबिर को, अरे असलम मेरे साहब को। अकाबिर मेरे सर के ताज हैं। तो सर के ताज का कुफर हाँ, ढो ना। कैसे कुछ? शौदा शहादत वाली कलम मेरे अपनी पास है। कब्र में हम बिस्तरी भी करते हैं जिससे उनको लज्जत मुयस्सर है। चलिए जवाब दीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों की हयात की यहाँ दोनों नौइयत की क्या है? बयाती खत्म हो गई, अब नबी की बात अंबिया, को मत कीजिए आप, अरे नबी अलैहिस्सलाम की बात को अलग कर ले, दीजिए। शौदा अपनी कब्र मतलब में, तुम जो शौदा कहो अपनी वो मैं कब्र में, मानूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी जो, बात तुम कोई मान नहीं सकते, अरे आप तुम्हारी नहीं ढो सारी बात मैं पाओगे तस्लीम कुफर। कर। मेरा नाम जमशेद अली कादरी ऐसे ही नहीं है, अरे भाई समझे। कभी भी बताओ, कभी सुनो, भी। तुम जैसे मुफ्ती लोगों ने बेचारे भोले भाले लोगों को ये इबारत दे दे करके घुमा रखा कुफर है, का लेकिन फतवा अपने तुम्हारे पास कब्र, है भाई, अपने कुफर का फतवा अपने तुम्हारे घर पास के है, अंदर देखते रहो तुम्हारे बांटते पास रहो। नहीं है कुफर का फतवा। हम तो मुसलमान बनाते चलते हैं लोगों को, अच्छा, तो कोशिश ये करते हैं बताइए मुसलमान ममाती बनाने को की। कुफर का फतवा क्यों दिया आपके दारुल उलूम इन्ना देवबंद ने? लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ममाती को कहाँ कुफर का फतवा दे दिया भाई? और मैंने दिखा दिया तो? दिखा दो। इलियास गुम्मन ने दिया, ओहो। दारुल उलूम हाँ देवबंद हाँ, ने दिया। तुम दिखाओ, सुनिए तुम सुनिए दिखाओ, सुनिए, नहीं तुम दिखाओ। अच्छा दूसरा तुम फतवा दिखाओ सुन लीजिए, दूसरा फतवा। ममाती के कुफर का फतवा तुम दिखाओ। हाँ मैं दिखाता हूँ। गलत तो कह रहे हो तुम, ममाती गलत तुम्हारी कह रहे हो, नजर में, इंतहाई गलत बात। ममाती तुम्हारी नजर में क्या है? अरे भाई ममाती भी मुसलमान है, ला हौल तुम भी वला मेरी कुव्वत। नजर में जो मुसलमान हो। मेरे नबी को कब्र में मुर्दा कहे तुम उसे मुसलमान मानते हो? ओहो, तुमको यही फर्क नहीं ला पता चला। हौल वला तुमको कुव्वत। यही नहीं पता सामने चला। ग्राम देख लीजिए इनकी तुमको यही जहालत। पता नहीं। चलिए दूसरी बात, तुमको दूसरी बात, तुमको यही नहीं पता चला दूसरी ना। बात, दूसरी बात, दूसरी इस बात, बात को मैं दूसरी जाने नहीं बात, दूंगा। तुम सामने दूसरी को बात। सुना रहे हो। हाँ ये हाँ, बात, वो ये मैं बात, ये लगाऊंगा, बात पहले अभी करो। ऑडियो हयाती लगाऊंगा। और ममाती के अकीदे में फर्क क्या है अब बता। हयाती हयाती ममाती हुजूर के, को हाँ अपनी कब्र में जिंदा मानते हैं, हाँ। ममाती हुजूर को कब्र में भी मुर्दा मानते हैं। लो, जाकर के तुम फिर से देख करके दोनों का अकीदा पढ़ लो। चलिए हम वो बात, इल्म नहीं है तुमको, वो छोड़ जाहिल हो। दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, जाहिल हो, अब उसको जाहिल छोड़ हो। दीजिए। चलिए आप नहीं, बताइए, जाहिल हो तुम। आप बताइए, ये नहीं पता तुमको। आप बताइए, बिला वजह के तुम दूसरों आप को बताइए, कुफ्र का फतवा आप बांटते पड़ बताइए, रहे हो। आप बताइए क्या? कि क्या है फर्क? दोनों के, हम्म, अंबिया और शुहदा के ना ना जिंदगी में, ना ना ना, हयाती हयात में। ममाती का। ओहो, ये अब तुम मुझसे पूछोगे? कुफ्र का फतवा तुमने बांटा और मुझसे पूछोगे? मैं नहीं अल्लाह की बताऊंगा जब तक लानत तुमने हो तहकीक झूठों नहीं पर, करी। अगर मैंने ये कहा कि मैंने बांटा है तो मैं तो दोनों को क्या? काफिर कहता हूँ। ओहो, अच्छा अच्छा। अच्छा आप दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात मैं, सुन लीजिए, दूसरी बात हाँ, सुन लीजिए। मौलाना इलियास, जो अभी आपके तबलीगी जमात के, क्या नाम है उनका, मौलाना साद, मौलाना चलो साद के ऊपर गुमराही का फतवा क्यों दिया दारुल चलो। उलूम देवबंद ने? अच्छा, तुम बात कहाँ से, एक आप बात तो फतवा पूरी नहीं नहीं हुई। बांटते ना, मैं आपकी अरे औकात मुझे दिखा रहा हूँ ना। आप फतवा नहीं बांटते, हम फतवा कुफ्र बांटते का हैं ना। फतवा का, कुफ्र का फतवा का कुफर भाई का अच्छी फतवा तरह बता सुन लो। देता हूँ, देखिए ये कुफ्र आपकी का किताब, फतवा। सुनिए ये आपकी किताब, ये हम्म आपकी किताब तज़किरतुल हम्म रशीद। हम्म इसमें पूछा गया मौलाना रशीद अहमद गंगोई से कि क्या मौलाना लताफत अली को आप क्या समझते हैं? कहता मौलाना लताफत अली पक्का काफिर है, मौलाना लताफत अली पक्का काफिर है। हम्म ठीक, किस बेस पर? कि वो उसके अकायद जो है वो फिर गए हैं, मौलाना लताफत अली के अकायद फिर गए हैं तो वो काफिर है। अच्छा, उसके बाद आगे पूछा गया कि भाई, आगे एक मुसन्निफ है उनका तज़किरतुल रशीद में, जो, एक मिनट बताता हूँ, जो रंडियों को मुरीद करते थे, क्या नाम है उनका, नाम भी ध्यान में नहीं आता। चलिए उनके बारे में पूछ लेता हूँ कि उनके बारे में आपका क्या अकीदा है। तो आपके रशीद अहमद गंगोई साहब लिखते हैं कि उनके बारे में अकीदा ये तो पक्का तौहीदी में गर्क है वो। ये तुम क्या कह रहे हो? ये आपकी किताब वजह, पढ़ रहा हूँ, तज़किरतुल रशीद। ना तो वजह बताए बगैर कैसे किसी को मुझे क्या काफिर कह पता, रहे हो तुम? काफिर का फतवा तो दे रहे हैं ना आप, तो कह रहे नहीं हाँ, देते। तो तुम उनके अकीदे बताओ ना, किस अकीदे की चलिए वजह से मुझे क्या काफिर पता, उनको उसमें कहा? इतना ही लिखा हुआ है मौलाना मुमकिन लताफत है, अली काफिर अरे है। मुमकिन है। देखो, जरूरियात दीन अच्छा का चलिए इनकार चलिए करने वाला चलिए क्या है? चलिए चलिए मैं चलिए, तो मैं भी वही उसको तो इनकार हम मान कह रहे लूंगा। हैं ना कि जरूरियात दीन करने वाले के ऊपर कुफर का फतवा तो हम लगाते हैं। हमने सब और किसके लगाते हैं, ऊपर कुफर ठीक। का फतवा लगाया बताइए? अरे भाई, हमारे अकाबिर को तुमने कब तो छोड़ा तुम्हारे है? काबिर ने काम ही वैसा किया है ना, क्या काम जो किया है? हुजूर के इल्मे गैब को जानवर पागल से तशबीह दे, जो कहे इन्ना अल्लाह अल्लाह लिल्लाह अल्लाह तबारक इन्ना व तआला लिल्लाह। माज अल्लाह झूठ बोलने नहीं पे नहीं, कादिर है, ये समझ की कमी है भाई। जो ये समझ कहे की कि कमी है, समझ की बिलफर्ज कमी बाद है, जमाना नबी अगर समझ कोई की नबी कमी है, पैदा हो समझ की जाए जहालत तो है, जहालत। खातमुन नबी में कोई फर्क ना जहालत है, आएगा, जहालत है, जिसको पढ़ के जहालत है, अहमद कादियान ने नबूवत का दावा कर दिया, जिस जहालत है, किताब जहालत, तहजीरुन नास को पढ़ के। जहालत है, अगर ये जहालत, जहालत है तो जहालत है भाई। सुनिए, अगर ये जहालत है तो ताहिर हम्म, गयाबी के साथ इटारसी में जो मुनाजरा हुआ था तहजीरुन नास पर मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब के साथ, तो ताहिर गयाबी के दोनों शागिर्दों ने मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब के हाथ में बैठ क्यों की, तौबा क्यों की देवबंदियत से? कटिहार में मुनाजरा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हो। ओहो, इटारसी मुनाजरे में, ओहो, इटारसी मुनाजरे में कैसी नजर बात तुम मोहम्मद कर की रहे हो धज्जियां भाई? उड़ाई गई 6 दिन।
6 दिन ये धज्जियां उड़ाई गई इतना दारसी झूठ, मुनाजरे इतना में। बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। अल्लाह मैं की बताऊं, लानत हो झूठों पर। सुनो सुनो सुनो, हाँ आमीन बोलो झूठों पर पहले, आमीन अल्लाह की बोलो, लानत तो झूठों पर, आमीन बोलो, लेकिन ये पहले सुनो, ये आमीन पहले आमीन बोलो, आगे आगे आमीन आगे बोलो, आगे आमीन पहले बोलो पहले। उनकी जो मैं शख्सियत ऐसी झूठ थी, बोल रहा हूँ, ताहिर किसकी? ताहिर ताहिर याबी ग्यावी पखाने में साहब की मरा, शख्सियत है। पखाने में मरा अरे वो। भाई जहां भी मरे अल्लाह ताला जिसकी जहां मौत और मुकद्दर कर देगा, हाँ क्या तो तुम तुम इससे चलो फैसला चलो, अब करोगे? उस बात को छोड़ दो। लो, शोहदा जब को कब्र में, तुम करो मैं तुम्हारे पीछे चलूं, मैं करूं तुम मतलब तुमने कह दिया ना छोड़ भाई कि दो। कहीं भी मरे अल्लाह ने जिस जहां लिखी, तो पखाने में मरा ना वो, उसकी तहकीक नहीं, की ये हमने पहले पूरी। उनकी शख्सियत को तुमने दागदार किया, मैं काहे की बता रहा हूँ शख्सियत? जो ये कहे कि दुरूद हाँ हाँ, नापाक, दुरूद शरीफ को नापाक कहे, वो बदबख्त, कौन कह वो दिया भाई, कमीना, कौन कह दिया, वो किसने कह शैतान, दिया? ताहिर गयाबी, यकीनन शैतान है वो जो ताहिर दरूद पाक को गयाबी, नापाक है। हाँ ना ताहिर ना ना, गयाबी। ये जहालत है तुम्हारी, वीडियो भेजू, तुम्हारी जहालत है वीडियो तुम्हारी। भेजू, हाँ हाँ भेजो। भेजता हूँ। चलो मैंने इस फतवा देना फिर, तरह मैंने इस तरह की फतवा देना फिर उसके ऊपर। वो कहता है बरेलवी जो दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, वो दुरूद पाक नहीं है, दुरूद नापाक है। मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे पास। अब दूसरी बात, हाँ बे। चलो दूसरी बात, शौदा को कब्र में लज्जत हासिल होती है, हम बिस्तरी करते हैं, जवाब दो। अच्छा, मैं वही कहूंगा, दोनों के दरमियान तुम फर्क बताओ। दोनों के दरमियान फर्क है ही नहीं, बहुत फर्क है, कंपेयर ही हाँ, नहीं है। ये हो गया बस, फर्क यही हो गया, कोई कंपेयर नहीं, दोनों का मुकाबला हो ही नहीं सकता किसी हो ही सूरत नहीं में। सकता, यही नहीं, फर्क है। यही हाँ फर्क है। हाँ, ये मैं कहूँ मेरे और तुम्हारे में क्या फर्क है, तो बस कि दोनों का तुम कंपेयर हो ही काफिर हो, नहीं मैं सकती मोमिन हूँ, ओहो ये फर्क है। काफिर मोमिन, बस ये फर्क है। काफिर मोमिन, वो तो वहां तो मैं भी कह सकता हूँ वो नबी है ये शहीद है, वो नबी है और ये शहीद है। अब तुम बच्चों क्या को मलफूजात की इबारत भेज भेज के बहुत चौड़े होते हो आप लोग, अभी फंसे पड़े हो, जवाब नहीं आ रहा है। ऐसा मत कहो, याद देख रहे हैं कौन, याद दो लफ्ज क्या जवाब नहीं निकल पा रहा है, चलिए, मैं दो हंस लफ्ज नहीं का रहा हूँ, जवाब। मैं आपकी किस्मत पे हंस रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने किस्मत को ऐसा बंद कर दिया है, मुझे तौबा मुझे भी तुम्हारी मुयसर नहीं हो रही है मुझे तुम लोगों तुम्हारी को। जहालत पर हैरत है भाई, मुझे अंबिया, गुस्सा आ रहा है तुम्हारी जहालत पर, अंबिया सुनो, इतने इतने बड़े जाहिल होने के बावजूद भाई। शौदा को कब्र में वो हम बिस्तरी करते हैं जिससे उनको लज्जत हासिल होती है, ये जवाब दिया है आपके असलम हफीजुल्लाह दारुल उलूम देवबंद। उसका जवाब दीजिए, कहाँ पढ़ा उन्होंने, कहाँ हदीस में लिखा है? कभी नहीं ऐसा ऐसा कर सकते कि मैं तुम्हारे पीछे चलूं और मेरी बात तुम न मानो, हो नहीं सकता कभी। तुम्हारी किस्मत जब पे तक मुझे हंसी जब आती है तक कसम से। और तौबा कर तुम्हारे लो, सुनो सुनो, फायदे में रहोगे, और तौबा कर लो। तुम्हारी जहालत पर मुझे गुस्सा आ रहा है, कितना बड़ा अभी तो जाहिल, आपने क्या गालियां क्या बकी हैं दुनिया भर के। क्या गाली दी है? अभी तो आपने पता नहीं क्या क्या अलकाब इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग में इस्तेमाल किए थे। हाँ हाँ, उसका इस्तेकाम था देखिए, इसलिए आपने नवाजा ये गया। एग्री किया कि वो हम बिस्तरी करते हैं सौदा कब्र में, उसका जवाब दीजिए। मैंने कब्र में कहा भाई? अभी तो तुमने कहा कि हम बिस्तरी करते हैं कब्र में, इससे पहली ले, रिकॉर्डिंग में। अरे भाई कब्र में लफ्ज नहीं आएगा, जाओ देख लो, अच्छा, कहाँ फिर से करते हैं, जाओ देख लो। कहाँ करते हैं? मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ कि दोनों में फर्क क्या है? मैंने तो तुम्हें जवाब दोनों दे का दिया कि हुजूर दोनों की का हयात को शौदा की कंपेयर हयात से जोड़ नहीं सकते। जोड़ नहीं सकती, ये जवाब है, हाँ, जवाब है। ये तो खुद सोचो, कुरान नहीं हदीस से जवाब दे रहा हूँ मैं खुद आपको। सोचो, खुद सोचो भाई, खुद क्या सोचो, सोचो? ये जवाब है, ये जवाब नहीं हो सकता। आपका, चलिए आपका क्या अकीदा, फर्क क्या है? मैं बताऊं तुमको, आप बताइए। अभी ये तुमको पता है ही नहीं, मुझे आगे नहीं का पता, सवाल चलिए कैसे मुझे तुम मुझे पूछेगा? नहीं पता, आप बताइए। नहीं नहीं, ये तुमको पता है मुझे ही नहीं नहीं, आगे पता, का। मुझे पता अच्छा, ही नहीं, आप बताइए, अब मैंने सिलेंडर कर दिया। चलिए आप बताइए क्या ठीक फर्क है। ठीक, अब सुनो तुम, हाँ सुनना होगा तुमको, बीच हाँ में हाँ, नहीं बोलना नहीं होगा बोलूंगा। जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए। ठीक है। देखो, अब अंबिया कराम की जो जिंदगी है वो जसद मंसूरी के साथ है, कब्र के अंदर है, ठीक, लेकिन शुहदा की जिंदगी ये वाली नहीं है जसद मंसूरी के साथ। अब तुम बताओ, जब जसद मंसूरी के साथ जिंदगी नहीं रहेगी तो अब वो कहाँ ये रहेंगे? कहाँ लिखा है, हवाला दे दीजिए। क्या? जो आपने बोला, आपकी बात थोड़ी मोतबर होगी, हवाला दीजिए, कहाँ लिखा है कुरान हदीस में। अच्छा, कुरान हदीस, अब कुरान हदीस पर तुम आगे, तो हवाला दोगे ना, कहाँ से पढ़ रहे हो आप? तुम कुरान हदीस पर आगे। आपने कहा कि अंबिया की जिंदगी जिस्मानी तौर पर जिस तरीके से है उस तरीके से शोदा की जिंदगी नहीं है, ये कहाँ पढ़ा आपने? नहीं है, कहाँ पढ़ा आपने? दोनों में किसका फर्क कॉल है। है, मैं किसका सुनो कॉल सुनो है ये? सुनो सुनो, आपका ये कयास नहीं हाँ, चलेगा, कुरान अच्छा सुन हदीस लो, इजमा और कयास सवाल, शरई, हाँ सवाल कर लिया मुहद्दिसीन ना, का कयास। चलिए। सवाल मुकम्मल हो गया ना। अब देखो, अंबिया की जिंदगी उस रिवायत से है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया अपने कब्रों में जिंदा होते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ठीक। और अंबिया के बारे में क्या, अरे शुहदा और के बारे में शोदा के क्या? बारे में? शुहदा के बारे में ये है कि उनकी रूहें जो होती हैं जन्नत के सब परिंदों के पपोटों में होती हैं। शोदा अब के बताओ, बारे में, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसको मुर्दा गुमान ना करो, उनको रिजिक दिया जाता है। ठीक, कहाँ तब दिया जाता है रिजिक? दोनों में जोड़ क्या है? रिजिक कहाँ दिया हैं? जाता है? रिजिक कहाँ दिया जाता है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ अरे कि रिजिक कहाँ दिया उनकी जाता है, कब्र में या उनकी कब्र से बाहर? उनकी जिंदगी उनकी जिंदगी की कैफियत ही इस तरह नहीं बताई गई है जिस तरह हुजूर कहाँ से सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ वसल्लम रहे की हैं भाई बताई गई आप, है। मुझे हवाला तो दीजिए।
शरीयत में आप अरे क्या हैसियत रखते हैं शरीयत में? मैंने शरीयत तुम्हारे में सुनिए, हाँ आप रिवायत मुकल्लिद है ना सुनाई, इमाम रिवायत अबू हनीफा के? रिवायत सुनाई भी, रिवायत सुनाई आप तुमको। मुकल्लिद है ना इमाम अबू हाँ हनीफा के? तो मुकल्लिद अगर आप इमाम अबू हनीफा के हैं मसले में, हाँ, तो ये जो मसला है ये अकीदे का है या मसाइल है? अब ये ये जो मैंने आपसे सवाल किया ये अकीदे का मसला है या मसाइल है? तुम पूछना क्या, जरा सीधा सीधा सवाल करो तुम ना। हवाले से बात करें ना, अब मुझे हवाला दे, जो आप बता रहे हैं मुझे कि शौदा की ये करो, सुनो जिंदगी हुजूर की तरीके से जो आप बयान कर रहे हैं, मुझे हवाला दीजिए। रुक जाओ। अब तुम एक तरफ मुझे मुकल्लिद भी कह रहे हो, एक तरफ हवाला भी मांग रहे हो। तो मुकल्लिद ही तो कहाँ के हवाला तुम देता मुझे? है ना अरे यार, मुकल्लिद ही तो अरे भाई, मुहद्दिसीन पे चलता है ना। मुकल्लिद का मतलब क्या होता है? मुकल्लिद उसको कहते हैं मसले मसाइल में, अकीदे में तकलीद नहीं होती। ले भाई, अकीदे में कहाँ तकलीद लिखा करते है? हैं आप? कहाँ लिखा है? आप अकीदे में तकलीद करते हैं? अरे भाई, तुम नहीं करते हो अकीदे में तकलीद? नहीं, तुम अकीदे में तकलीद हम मसले में तकलीद करते हैं इमाम अबू हनीफा की। और अकीदे में? अकीदे में तकलीद नहीं होती। अकीदा जो है हदीस की नस्से कतई से साबित होता है, जाओ हदीस मुतवातिर से। जा करके अपने बड़ों से पूछ लेना कि अकीदे में तकलीद होती है कि नहीं आपसे होती मुझे है। पूछने की जरूरत नहीं है, जहालत आपकी नहीं, रिकॉर्ड हो रही है। मुझसे ना पूछे, मुझसे ना मुझे पूछो, आप अपने बताइए बड़ों कि से आप पूछ ले। तकलीद करते हैं, अकीदे में भी तकलीद करते हैं? अपने बड़ों से पूछ लेना। अकीदा कैसे देखा जाता है? अशायरा अकीदा मातुरीदिया अकीदा ये के लिए कौन क्या है? जरूरी है? अकीदा के लिए क्या जरूरी है? अशायरा मातुरीदिया ये कौन है? तुम पूछ लेना अपने बड़ों से। अल्लाह अकबर कबीरा। सामीन इकराम, आपने सुन लिया, ये पता नहीं अशायरा बेढोल के मातुरी मुफ्ती हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। ये